Ladies and gentlemen, today we are here. I means me, Paresh Sharma, with Vidhu Thapa. He's TGT English teacher, and me, Paresh Sharma, working as a TGT social science teacher in Mount Liturgy School. So today we have a topic to discuss about changing education scenario. yes, how education scenario has been changed across the globe, or how it is evolving in the country, means like in India or in other countries. As you know, the world is completely shrank. If you think like we people right now residing inside Bihar in the district of Kaimur, but we can't take it for granted ki no, we are here in only in Kaimur and we have no competition with other schools or with other states or with other countries. If you are not very aware about the things which is happening around us across the globe, somewhere they will means the things will be affected your life directly or indirectly. But now it's up to you. You have concern about it or not. Now it is totally depend on you. How you are aware, how much you are aware for the things which is evolving around you. If you are aware very much about that thing means you are adopting the things like technological changes in education, technological changes in industries, like what kind of job is offering here in this country or across the globe, and what kind of education we are providing in schools or in college. There is a gap between it कि एजुकेशन हम किस प्रकार की दे रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में किस प्रकार की जॉब्स एवॉल्व हो रही हैं, उससे परफेक्टली मैच हमारी एजुकेशन सिस्टम करता है। वैसा स्किल्स, वैसी ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट हम स्कूल के अंदर दे रहे हैं। डेफिनेटली जो जॉब्स की आज एक गला काट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, उससे बच्चे को कैसे उसके लिए तैयार करें। यस सर। Thank you so much, Paresh sir, for providing us very good information, right? So, what is your vision in relation to global changing what education system? Like, what is your vision? How do you promote literacy in Bihar, like especially in Kaimur? So, what is your further vision regarding this scenario? Yes sir. As you have asked this question, sir, what I have seen here, what I observe in last 20 or 25 days, people are not much an access to know new things, to learn about new things. Somewhere they are in dilemma. It is good or it is just like they are making fool us. But I need to say only one thing here. I can take one example from nearby to our country, that is China. As you know sir, in 90s चाइना की पॉपुलेशन बहुत एक्सपेंड हो रही थी और चाइना के लिए प्रॉब्लम था कि एजुकेशन को, उस पॉपुलेशन को कैसे एजुकेट करके वो एक अपॉर्चुनिटी बनाया जाए। तो बिहाइंड इट और बिसाइड इट्स कि लोग डिग्री पर फोकस करें कि मैंने MBA कर लिया, मैंने BTech कर लिया, मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया, फर्दर जो भी करना चाहता है लोग, उसने ध्यान दिया स्किल्स प्रोग्राम पर, प्रोफेशनल कोर्सेज पर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर। वैसे स्किल्स इन द स्कूल्स, even they establish such kind of education in their own school, not any other places. कहीं दूसरी जगह उन्होंने स्थापित नहीं किया। लाइक कि बच्चे की ट्रेनिंग कराई उन्होंने कि कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। लाइक उसके इंटरेस्ट को समझा कि उसका इंटरेस्ट किस में। सबसे पहले देखा कि अगर उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग के किस पार्ट में उसका इंटरेस्ट है। वैसे स्कूल्स के अंदर ही ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किए गए, स्किल्स और वोकेशनल कोर्सेज के प्रोग्राम चलाए गए और उन प्रोग्राम में उनको ट्रेन किया गया और वहाँ से जो प्रोडक्ट बने
उन प्रोडक्ट को खपाने के लिए, डंप करने के लिए, जो एक ग्लोबली टर्म यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में, डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट, कहाँ खपाया जाए। तो एक तरफ था यूरोपियंस कंपनीज जिनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी बहुत हाई थी, एक तरफ थी चाइना के अंदर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे थे उनकी कंपैरेटिवली वैल्यू कम थी, मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू थी लेकिन उनकी जो कॉस्ट थी वो कम थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मार्केट ढूंढा। और अभी आप देखें सर, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में सिल्क रूट, ये जो सिल्क रूट है उसी की देन है। उस सिल्क रूट पर आज चाइना फिर से काम कर रहा है कि कैसे विदाउट एनी डिस्टरबेंस चाइना से जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू, या जो भी वो इंजीनियर्स अपने पैदा कर रहा है, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, उनको कैसे डंप किया जाए ग्लोबल मार्केट में कम कॉस्ट पर। तो उसने सर चाइना से लेके और इधर इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा जो है उधर से कनेक्ट करते हुए और पाकिस्तान से होते हुए और अफ़गानिस्तान और ऊपर ईरान की तरफ को जो रूट टच किया उसने यूरोप को, मतलब यहाँ से लेके उसने उसमें 2-3 चीज़ें उसने कनेक्ट की हैं। जैसे उसने पोर्ट कनेक्ट किए हैं, उसने रोडवेज ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट किया है, और वो सिल्क रूट पर काम कर रहा है कि यहाँ जो प्रोडक्ट चाइना में तैयार हों, जो कि उसके बहुत बहुत छोटी छोटी, हर घर के बाहर सर आप वहाँ देखेंगे, ज़्यादा से नहीं, कम्युनिटीज़ फैक्ट्रीज़ मिलेंगी आपको। कम्युनिटीज़ फैक्ट्रीज़ का मतलब ये है कि जो आसपास के लोग हैं या जो बच्चे हैं उन्होंने ट्रेनिंग ऐसी ली है कि वो कुछ प्रोडक्ट बनाएं, और उनकी अपनी एक फैक्ट्री सेटअप है, लाइक 10 लोगों का, 20 लोगों का। वहाँ जो वो माल तैयार करते हैं उसको बेचने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो कुछ हमारी सरकार भी इस प्रकार से वोकेशनल कोर्सेज पर ध्यान दे, बच्चों की जो अनस्किल्ड बच्चे हैं, इंस्टीड ऑफ कि उनको डिग्री कराए कि 10th कर लिया, 12th कर लिया, फिर ग्रेजुएट हो गया, फिर भी जॉब नहीं है, तो जॉब कैसे क्रिएट करें कि उनके अंदर वो स्किल ही नहीं है। तो स्किल्स, उनके अंदर स्किल्स कैसे डेवलप हो, उसके लिए वोकेशनल कोर्स, ट्रेनिंग कोर्सेज ऐसे इम्प्लीमेंटेशन सरकार स्कूल्स में लेके आई, या बिहार गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट इस पर विचार कर सकती है। और हमारे लिए एक मॉडल है, अच्छा मॉडल है। हमारे अच्छे एजुकेशनलिस्ट जो अच्छे शिक्षाविद हैं वो जाएँ चाइना की ट्रिप करें, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझें, और अगर वो चीज़ हमें चाइना से सीखने को मिल सकती है उसमें कोई, मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। मूविंग अहेड, जैसे कि आप यू आर एसएसटी टीचर, राइट? यस, एसएसटी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स मीडिया करने का होता ही है। तो आपको क्या लगता है कि एक हेल्दी पॉलिटिक्स एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से बदल सकता है? आपकी क्या राय है इस विचार पर, इस चीज़ पर? यस सर, आपने हेल्दी पॉलिटिक्स की बात की। देख सर, इनिशियली मैं अगर देखूं पॉलिटिक्स की बात को, तो जो राजनीति के बारे में एक बड़ा सर्वमान्य यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एक टेक्स्ट है, वो चाणक्य का अर्थशास्त्र है। उसमें उसने राजनीति की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है, और आज की जो राजनीति की परिभाषा है जो उससे बिल्कुल उसका शाब्दिक रूप से मेल है, लेकिन विरोधाभास है, भाव उसके अलग है। कैसे विरोधाभास है सर, मैं उसको बताऊंगा। कि पहले जो पॉलिटिक्स में आते थे लोग, दे कम टू द पॉलिटिक्स टू सर्व द पीपल, बट नाउ the person who are coming in politics, who have tendency to seek about the career in politics, they are coming with a vision of to rule the people. Somewhere they have such kind of mentality कि वो उनको रूल करना है। लेकिन पहले जो लोगों का विजन था पॉलिटिक्स को, वो ले था कि लोगों को जाके सर्व करना, सेवा भाव से आते थे। तो इसमें भी एक बड़ा बदलाव है। हेल्दी पॉलिटिक्स की अगर मैं बात कहूँ कि वो तो सब जग जाहिर है कि जो 3 त्रिकोण बने हुए हैं, सबसे पहला राजनेता, दूसरे उद्योगपति, तीसरे नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स। इनका जो ट्रायंगल बन गया है एक दूसरे को इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए कि मुझे क्या, तू क्या मुझे देगा। राजनेता उद्योगपति से कहता है, उद्योगपति
नौकरशाह से और राजनेता से, तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हें क्या दूंगा। इसने कहीं ना कहीं देश को एक अलग दिशा दे दी है और लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सांकेतिक रूप से मैंने बोल दिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप समझते हैं। वाइंड अप करेंगे क्योंकि 10 मिनट हो चुका है, ठीक। तो बाकी सेशंस हम सर के साथ कल भी करेंगे। तो सपेक्स में इन कंक्लूजन अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ बताना चाहेंगे तो किस तरीके से आप बता सकते हैं? हमने जो भी बात किया सारी चीज़ों पे। हाँ सर, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहले कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे डेवलप किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है आज देश के सामने। मैं यही कहूँगा बहुत इन ब्रीफ कि ऐसे प्रोफेशनल और ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार स्टार्ट करे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर्स है स्कूल का, अलग से हमको स्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं एक सेंटर ऐसा तैयार करे कि बच्चों के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करे कि किस बच्चे का किस सेक्टर में इंटरेस्ट है। क्या उसका कारपेंटर बनने में इंटरेस्ट है, क्या उसका ड्रेसिंग डिज़ाइन करने में, या उसका मैन्युफैक्चरिंग में लाइक फ़ोन के अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो कंप्यूटर के ज़्यादा अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, या वो ये समझना चाहता है कि लाइट कैसे जल रही है, पंखा कैसे चल रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान है। उसके इंटरेस्ट को टीचर ऑब्जर्व करे, टीचर भी वैसा हो जो ऑब्जर्वेशन जिसकी अच्छी हो, बच्चे के ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करके जहाँ उसका इंटरेस्ट है वहाँ वैसे वोकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्सेज बच्चे के लिए सेलेक्टेड करके उसके लिए स्टार्ट किए जाएं, एज कम्पेयर टू जो टेक्स्ट बुक रटाने पढ़ाने वाली पद्धति है। डेफिनेटली इससे देश को बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में वही टिक पाएगा। कंपटीशन का टाइम है, जिसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे और चीप भी होंगे, सस्ते होंगे। सस्ता और अच्छा। हाँ, सस्ता और अच्छा। तो हम सस्ते और अच्छी की दिशा में कितना काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। And no sir, you are not saying good. China is not making things like use and throw. No, China all beyond of this. If you have a buying capacity, so you can purchase a good product from China. Sir, listen to me. No, you have no idea about the education system. No, you need to do study more. So let me conclude first. Let me conclude sir कि दूसरा आपने पॉलिटिक्स की बात की, तो लोग सेवा के लिए आए, सेवा भाव के लिए आए, ना दी वो करने के लिए, तो डेफिनेटली ये देश अच्छी दिशा में जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ऑल। मिलते हैं कल भी हमारा ऑब्वियसली इस तरह है, ठीक है। थैंक यू।